Hello everyone, this is Rashmi. Welcome to the channel. So here we have a discussion about how much score is required to get qualified in the upcoming RENET examination. So in this video, I'm going to tell you कि what is the score that you require to qualify the exam. आपको यदि ये UGC नेट एग्जाम क्वालिफाई करना है तो कितने मार्क्स स्कोर करना होगा, और इसके लिए मैं ब्लाइंडली कोई डिस्कशन नहीं करूंगी. यू कैन सी इन दिस स्लाइड वी हैव हमने यहाँ पर कलेक्शन किया हुआ है ऑल द प्रीवियस ईयर कट ऑफ. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम जुलाई 2018 एंड जो लास्ट आपका एग्जाम था दैट वाज दिसंबर 2023. इन सभी के मार्क्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंड बेसिस ऑन दैट आई विल कंक्लूड कि व्हाट कट ऑफ इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द एग्जाम. एंड अनदर थिंग दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस कि भाई कैसे आप इन लास्ट 15 डेज में अपना प्रिपरेशन करें सो दैट यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन. व्हाट यू हैव टू डू इन द लास्ट 15 डेज. तो यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डू share this video with your friends so that they will also get the clarity about the score and how they can qualify this examination. So before starting this video, let me tell you about myself, a quick discussion for those who are first time here. So I'm educator and the founder of Rashmi@JRF Guru. That is the platform where we are preparing for the UGC NET, SET and other competitive exam that is related to the computer science. Having 12 plus years of experience, MPSET, GATE qualified, research paper publication I have done. So yes, this is my brief profile. Join my Telegram channel to get the notification of classes, daily PDF and other updates. So it is @JRF Guru. You can join this one to get more update about the UGC NET exam, other SET exam and PhD entrance exam. Download my app to get the free content for the preparation that is of computer science, correct? And yes, I have also started the new batch for the December 2024. So if you are interested, still you can join because बहुत ज़्यादा classes नहीं हुआ है and this is the perfect time to start your preparation. So because this is what August is running, and if you are going to start, you can cover your syllabus, can do the revision, can do the practice before this December examination. So for the dedicated preparation, you can join my this live batch. And if you want to do the self study according to your schedule, then you can join my recorded course, correct? So yes, already batch start हो चुका है. So all these things you will get in the complete course. Either it will be recorded or it will be live. All these things you will get in my courses. Complete course coverage, detailed explanation, practice through MCQ, PYQs, practice of previous year paper, timer based mock test, full support, ask your doubt anytime, PDF for all unit, revision and practice session will be there. चलिए, तो देखिए here you can see we are starting from July 2018. तो जुलाई 2018 स्टार्ट करने के पहले एक जो माइंड में आपका कंसर्न होता है वो चीज समझिए कि डू वी नीड एग्जैक्टली 100% टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन. क्या मुझे 100% सिलेबस बनता होगा तभी मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाऊंगी? हाउ मच प्रिपरेशन आई नीड टू डू सो दैट आई कैन क्वालिफाई. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ इस बात पर फोकस करते हैं कि they should cover the complete syllabus and then they can qualify the examination. So जो आपको एक अंदर की बात है कि यहाँ आपको सिर्फ 60% स्कोर करना है. यू जस्ट रिक्वायर 60 to 65% ऑफ मार्क्स टू क्वालिफाई JRF इन अनरिजर्व कैटेगरी. सो यदि आप इससे बिलो कैटेगरी में आते हैं या आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली स्कोर कम होने वाला है. So to score the 60 or 65%, we just required to do the preparation of 80% syllabus thoroughly. लेकिन जो प्रिपेयर कर रहे हैं बहुत अच्छे से करें so that you can make this score, है ना. एग्जाम में भी समझिएगा, जब आप एग्जाम हॉल में पेपर सॉल्व करते हैं, it is not required that you should solve
ऑल 150 क्वेश्चन करेक्टली, लेकिन जिनको आप सॉल्व कर रहे हैं दैट शुड गेट सॉल्व करेक्टली. सो अप्रोक्सीमेटली यदि आप 70% क्वेश्चन सही सॉल्व करेंगे, you can qualify this exam. What we do, we get panic during the examination because of the 30% question. What happened, there are the 10 to 15% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट बनाए जाते हैं, ट्विस्ट करके बनाए जाते हैं, सो दैट स्टूडेंट विल गेट कंफ्यूज या फिर वो नर्वस हो जाएं और पेपर वो सॉल्व ना कर पाए. तो यदि आपने इस चीज को अवॉइड कर लिया विद 80% प्रिपरेशन, विद 70% प्रिपरेशन, यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन. सो जैसे मैंने बता ही दिया है कि 60 to 65 सफिशिएंट है. क्यों सफिशिएंट है? हियर इज द फर्स्ट cutoff of July 2018. 60% is the cutoff for the JRF for the unreserved category, and for the assistant professor it is only 51%. 10% का difference है, you can see. And then OBC, SC, ST हर एक कैटेगरी का मैंने यहाँ पर दिया हुआ है. So this is what first cutoff on an average 60%. ठीक है, this is the first cutoff we have. Then for December, in December it was 62%. Last कितना था? 60. Now it is 62%. And last it was 51 and now it is 54% for assistant professor. अदर कैटेगरी, आप जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं स्लाइड में देखते चलिए, साइमल्टेनियसली अपना कंपैरिजन करते चलिए. ओके, now we have July 2018. See, 60, 62, 62.67% for JRF, for JRF. Okay, and here again 54.67% for assistant professor. What is these number? Number of candidate that has been qualified this examination. ठीक है, इस कैटेगरी में कितने स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया वो यहाँ पर मेंशन है. अगेन स्टॉप द पीडीएफ एंड चेक योर कैटेगरी. ठीक है, ये आप अपना कैटेगरी यहाँ पर चेक कर सकते हैं. यदि अब बात करें दिसंबर 2019, 60 से स्टार्ट किया था, देन 62, last one is 62.67, 62.67, and it is again 60%, and this is again 52%. अभी 54 था, now it is again 54%. देखिए रेंज क्या चल रहा है, 60 to 62, 60 से 62 का ही रेंज है. EWS एंड OBC एंड ऑल आप अपना कैटेगरी चेक करिए एंड मैच करते जाइए. अगेन जून 2000 इट इज, यहाँ कैटेगरी वाइज नहीं है. सो नाउ इट इज अगेन 63%. अब ऐसा क्यों हो रहा है? 60, देन वी हैव 62, देन वी हैव 62 पॉइंट दिस, एंड देन वी हैव अगेन 60 एंड देन 63.3. सो व्हाट हैपेंड ना कि जब पेपर टफ होता है, जब पेपर टफ आता है, कट ऑफ नीचे चला जाता है. ठीक है, कट ऑफ नीचे चला जाता है. पेपर इजी है, कट ऑफ ऊपर चला जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट उतने ही क्वालिफाइड होते हैं. सो पेपर टफ है, टेंशन नहीं लीजिए, सभी के लिए टफ है. इजी है तो सभी के लिए इजी है. देन अगेन वी हैव दिस इज व्हाट फॉर दिसंबर एंड जून का मर्ज हुआ था एग्जाम. अगेन इट इज 180 मार्क्स आउट ऑफ 30, 300, सो इट इज अगेन 60% एंड 162 फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर. 162 मतलब वही 52% समथिंग है ना, 52% आपका ये स्कोर रहा. 54, देन दिसंबर 24 अगेन. हाँ, इस टाइम क्या हुआ था, हमने दिसंबर 2024 में द कट ऑफ वाज वेरी हाई बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन चैलेंज हुए थे और चैलेंज क्वेश्चन को एक्सेप्ट भी किया गया था. तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर ड्रॉप हुए थे एंड बिकॉज ऑफ दैट ये हमारा जो कट ऑफ है वो बहुत हाई हो गया था. दिस इज द ओनली केस, दिस इज द एक्सेप्शन, ये आपका एक्सेप्शन है. नाउ यदि हम अगेन डिस्कशन करते हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर जून 2023, यू कैन सी अगेन paper was tough, cutoff is 174 only and 156. So 174 obviously it is not 80%, less than 80, it is not 60%, less than 60 है ना, 174. And now again the recent result that we have, again 184 is the cutoff. 184 means approximately 61%, and 160 that is your approximately 52 or 54%. So yes, this is the range 60 to 65.
मैं 65 बोलती हूँ, फिर भी रेंज आप देख पा रहे हो उसकी 63 से ऊपर नहीं गया है, रेंज आपका 63 64 ही रहने वाला है। तो डोंट टारगेट 100%, डोंट टारगेट 80%, दोनों पेपर लेकर आपको सिर्फ 60% मार्क्स स्कोर करना है। 65 का टारगेट रखिए एंड एग्जाम में ऑल 100 क्वेश्चन सॉल्व करिए, सॉरी ऑल 150 क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, बिकॉज नो नेगेटिव मार्किंग। सो यदि नेगेटिव मार्किंग नहीं है एंड यू आर गोइंग टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। पहले वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए जो आप सॉल्व कर पा रहे हैं, देन विद एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो हमको थोड़े से लग रहे हैं कि यस आई हैव द नॉलेज अबाउट दिस क्वेश्चन एंड आई कैन सॉल्व दिस, तो उनको ऑप्शन एलिमिनेशन से सॉल्व करिए। फाइनली आपने क्या करना है, फाइनली आपने सिर्फ उन क्वेश्चंस को टिक कर देना है, बट नॉट ब्लाइंडली टिक नहीं करना है। अगेन यू हैव टू यूटिलाइज योर माइंड एंड लाइक ऑप्शन एलिमिनेशन या फिर गैसिंग के हेल्प से आप यहाँ पर आंसर दे सकते हो। सो लाइक इट इज व्हाट, हाँ आप कह सकते हो कि यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन 150 क्वेश्चन को आंसर करके आना है, देन डेफिनेटली यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। व्हाट अबाउट द प्रिपरेशन, लास्ट मोमेंट पर कैसे प्रिपरेशन करें? तो लास्ट मोमेंट पर प्रिपरेशन के लिए न्यू टॉपिक नो, न्यू सब्जेक्ट नो, ठीक है, ओनली वी हैव टू फोकस on practice and revision, practice and revision. Then how much practice? Solve the previous year paper. How to practice? Solve the previous year paper. PYQ solve करिए, गेट का सॉल्व करिए, नेट का सॉल्व करिए, और जो जून 2018 में जो अभी सॉरी 18 जून 2024 को जो पेपर हुआ था, डेफिनेटली इसको सॉल्व करिए। एंड हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन, जो भी रिवीजन नोट्स आपने प्रिपेयर किए हैं उनसे उनको रिवाइज करते रहिए। नाउ व्हाट अबाउट द टॉपिक जो नहीं पढ़े हैं, जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे, तो ऑब्वियसली उनके क्वेश्चन भी होंगे, उतने क्वेश्चंस भी यदि आप सॉल्व कर लेते हैं, दैट यूनिट विल बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, इतना तो प्रिपरेशन हो जाएगा कि आप 60 से 65% स्कोर कर पाए, है ना। एंड डेफिनेटली इस 4 डे वीडियो को यूटिलाइज करिए, अपना कैटेगरी से मैच करिए और अपना टारगेट सेट करिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वेदर दिस वीडियो इज हेल्पफुल और नॉट। ऑल द ट्रिक्स आई हैव गिवन हियर, नो न्यू सब्जेक्ट, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। आप मेरे प्लेटफॉर्म पर आकर प्री मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, प्री कंटेंट सेक्शन में मॉक टेस्ट अवेलेबल है, नहीं मिलता है यू कैन डायरेक्ट कनेक्ट विद मी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, फॉर एनी क्वेरी कनेक्ट विद मी ऑन माई मोबाइल नंबर। थैंक यू। हाँ, वन मोर थिंग, do subscribe the channel, like and share this video with your friends. Thank you everyone.